Hi everybody, I am Professor Sandeep Gupta from Engineering Minds, and in this video we'll be talking about the merit rank. So you have received a provisional merit rank today, and ever since students have received this provisional merit rank, there have been many questions कि ये स्टेट मेरिट रैंक क्या होता है, यूनिवर्सिटी मेरिट रैंक क्या होता है, एडमिशंस के कौन से बेसिस पे होगा, एंड सो ऑन. So in this particular video, I'll try to clarify these doubts of yours. Now, first of all, I'm sure you all must be having a document like this which shows your merit number and other details. So the first thing which you need to do is you need to verify these details. If you find a mistake in any of these details, you need to raise a grievance. Now, how to raise the grievance? तो उसका जो procedure है वो यहाँ दिया हुआ है. So I suggest that you read this procedure in case you want to raise a grievance. Now, after you raise a grievance, you will be allotted a final merit rank after a few days. So right now you have received a provisional merit number, and after a few days you will receive the final merit number depending on whether there is any difference, whether there is any correction in the data which you have entered. All right. Okay. Now let's understand that what exactly these things are: state general merit number, university general merit number, all India merit number, and so on. So if you talk about state general merit number, first of all, let me just remind you a few things. When we use the word general over here means boys and girls. Okay, that means the gentlemen and the ladies. Okay, and okay, so let's talk about what is a state general merit number. So this student has state general merit number 10,989. 10,989. So what exactly this means? It means कि महाराष्ट्र स्टेट में जितने लोगों ने CET सेल पे रजिस्टर किया है, of all those students, all those students, irrespective of their categories. Okay, when I say category, I mean the reserved category, EWS or whatever. Okay, so irrespective of their category, 10,989 is the merit number of this particular student. तो ये जो मेरिट नंबर है 10,989, इसमें और कोई फैक्टर कंसिडर नहीं होता है, जैसे whether it is a girl or whether the student belongs to OBC, SC, ST, EWS and so on. नहीं, इसमें कुछ भी कंसिडर नहीं होता है. ठीक है. उसके बाद उसी तरह से होता है यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर. So सबसे पहले you can see over here Mumbai University and you can see the merit number 3421. So I hope you remember that Mumbai University spans which geographical areas? So it spans the areas of Mumbai, Navi Mumbai, Thane and even some areas in Ratnagiri. Okay, तो ये जितने भी areas हैं, इन areas में जिन students ने CET सेल पे register किया है, उन students में से इस student का number है 3421. Okay, so basically 3421 is the merit number amongst the Mumbai students. Now when I say Mumbai, I mean Mumbai, Navi Mumbai, Thane and also some areas of Ratnagiri. अब इसका यूज कहां कैसे होगा वो देखेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे. अब ये ऑल इंडिया मेरिट नंबर क्या है, तो आई थिंक ये तुम सबको पता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन, ये जो स्टूडेंट है इसका मेरिट नंबर है 11085. ओके, सो आई थिंक इसका सबका मीनिंग तुमको समझ में आ गया. Now let's take one more example. Let's take example of this particular student. Now this is the data of a female, of a lady. Okay, तो ये उसका देखो स्टेट जनरल मेरिट नंबर है, ये यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर है. ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट बिलोंग्स टू द ओबीसी कैटेगरी. तो जब भी तुम ये कैटेगरी देखोगे ना, कैटेगरी का मतलब होगा ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वैसे. ठीक है, सो दिस स्टूडेंट बिलोंग्स टू द ओबीसी कैटेगरी. तो पूरे स्टेट में जितने भी लोगों ने ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई किया है, उसमें इसका मेरिट नंबर है 7123. देन वंस अगेन मुंबई यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई किया है, उसमें इसका नंबर है 885. नाउ दिस स्टूडेंट इज अ फीमेल and I hope you know that for females there is an extra, I will not say extra, for females there is a 30% reservation in each and every category. All right, so
जिस तरह से स्टेट जनरल, यूनिवर्सिटी जनरल और ये सब है, उस तरह से ये लेडीज मेरिट नंबर भी है। तो जो लेडीज मेरिट नंबर है ये वहां काम आएगा जब जब द सीट इज अलॉटेड अंडर द लेडीज कैटेगरी। एनीवे, इसकी बात हम बाद में करेंगे। Now let's take this TFWS merit number. Now by now you should be knowing what is TFWS. So TFWS के बारे में अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। For time being, this is the merit number of the student who has applied in TFWS category. So TFWS category is applicable when your family income is less than 8 lakhs and you also have an income certificate. Okay, तो ये स्टूडेंट ने TFWS कैटेगरी में अप्लाई किया है एंड उसका मेरिट नंबर है 11018। अभी इधर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो यहाँ तुमको स्टेट एंड यूनिवर्सिटी करके कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जो TFWS मेरिट नंबर है ना वो हमेशा स्टेट मेरिट नंबर होता है। सो 11018 ये जो मेरिट नंबर दिख रहा है, this is the merit number amongst all the students of Maharashtra who have applied in TFWS category. Then तुम में से किसी किसी के मेरिट नंबर में ऐसे तुमको डॉलर सिंबल दिखेगा या हैश सिंबल दिखेगा या @ सिंबल दिखेगा। ऑलराइट, सो आई होप यू कैन सी दिस डॉलर सिंबल ओवर हियर। अब अगर तुमको ये सिंबल दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कोई तो एक डॉक्यूमेंट है जो तुमको अपलोड करना था, बट तुम्हारे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं था तो तुमने उसका रिसीप्ट अपलोड किया है। So for example, ये जो स्टूडेंट है ना, this student has applied under OBC category. Okay, so अभी नीचे ये देखो रेड कलर में पूरा नोट भी दिया है। So the note says very clearly कि ये जो डॉलर सिंबल है, डॉलर सिंबल, ये डॉलर सिंबल क्यों आया है? क्योंकि this student has uploaded the receipt of caste or tribe validity certificate, not the actual document of the caste and tribe validity certificate. Okay, तो ये जो स्टूडेंट है उसने हो सकता है अभी 1-2 महीने पहले ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया होगा, तो अभी तक उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं आया होगा, तो इसलिए उसने क्या किया रहेगा? सिर्फ वो रिसीप्ट अपलोड किया रहेगा। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर तुमने इस तरह से रिसीप्ट अपलोड किया है तो बाय 9th ऑफ नवंबर तुम्हें वो सर्टिफिकेट, एक्चुअल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, otherwise your admission will stand cancelled, it will get cancelled. Similarly, अगर तुमको हैश सिंबल दिखाई दे रहा है, हैश, तो इसका मतलब you have not produced this non creamy layer certificate. ओके, तुमने खाली उसका रिसीप्ट डाला है। सिमिलरली अगर तुमको @ सिंबल दिखता है तो इसका मतलब तुमने EWS सर्टिफिकेट का रिसीप्ट डाला है, तुमने वो एक्चुअल सर्टिफिकेट नहीं डाला है। ऑलराइट, तो ये इसका मतलब होता है। So now I have explained you कि कौन सा मेरिट रैंक क्या है, ओके, उसका मतलब क्या है, ये डॉलर सिंबल क्यों आए, that all I have explained you. Now the question which many people are asking me is कि सर हमारे एडमिशन के लिए कौन सा मेरिट नंबर यूज होगा? स्टेट वाला, यूनिवर्सिटी वाला, ओबीसी वाला, कौन सा यूज होगा? तो वो समझने के लिए we have to first understand a few things. Okay, so let's understand a few things over here first. ओके, अभी यहाँ पे जो भी मैं तुमको बता रहा हूँ, ओके, प्लीज पे अटेंशन एंड स्लोली एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। अभी मुंबई में जो भी कॉलेजेस हैं, दे कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू ऑटोनॉमस एंड नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस। राइट नाउ आई विल नॉट एक्सप्लेन यू द डिटेल मीनिंग ऑफ दिस एंड दिस, इसके बारे में हमने बहुत बार बात किया है, अपने सेमिनार में भी हमने बोला है। So VJTI, SPC, SPIT, Institute of Chemical Technology, DJ Sanghvi, Vidya Lankar, they are autonomous colleges. Thadomal, that is TSEC in Bandra, Vivekananda in Chembur, Francis in Borivali are non-autonomous colleges. अभी होता क्या है ना कि जो autonomous colleges में जो seats होते हैं ना, seats, they are state level seats. Okay, keep listening and it will all make sense to you in some time. Whereas non-autonomous colleges में जो seats होते हैं, they are divided into two categories. एक होता है HU home university और दूसरा होता है OHU out of home university. इसका मतलब क्या? If you live in Mumbai, let's say you live in Borivali or Mulund, somewhere in Mumbai,
Once again, when I say Mumbai, I mean Mumbai, Navi Mumbai, Thane, and even some areas of Ratnagiri. When I say Mumbai, I am saying Mumbai with reference to Mumbai University. Okay, so if you live in Mumbai, तो जो मुंबई यूनिवर्सिटी होगा ना वो तुम्हारे लिए होगा होम यूनिवर्सिटी। एंड अगर तुम पुणे के कोई कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो पुणे यूनिवर्सिटी होगा तुम्हारे लिए आउट ऑफ होम यूनिवर्सिटी। ओके, सो थर्डोमल में, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ थर्डोमल, उसमें जो सीट्स हैं, ओके, नॉट ऑल बट सम सीट्स, विद सम सीट्स आई विल टॉक अबाउट इट। तो उसमें जो सीट्स हैं दे विल बी कैटेगराइज्ड एज एचयू एंड ओएचयू। तो तुम जब थर्डोमल में अप्लाई करोगे, ओके, तुमको ये एचयू में से सीट्स मिलेगा। बट अगर तुम कोई पुणे के कॉलेज में अप्लाई करोगे तो तुमको ओएचयू सीट मिलेगा। ओके, बट दैट इज नॉट द केस विद ऑटोनोमस कॉलेजेस। ऑटोनोमस कॉलेजेस में क्या होता है, ऑल द सीट्स आर स्टेट लेवल सीट्स। ठीक है, now let's go to this particular page. Okay, so let's take some examples and with the help of examples we'll try to understand कि कौन सा मेरिट नंबर कहाँ यूज होता है। So let's say your mother tongue is Gujarati and तुमने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती, ओके, ये कोटा में तुमने फॉर्म भरा है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इस स्टूडेंट की बात करो, ओके, इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट, तो तुम इधर देख सकते हो ये स्टूडेंट ने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती एंड रिलीजियस माइनॉरिटी जैन ये इसमें अप्लाई किया है। ऑलराइट, सो सिमिलरली लेट्स से you belong to Gujarati linguistic minority quota, okay, and you have applied to DJ Sanghvi College, okay, DJ Sanghvi College. So DJ Sanghvi College में 51% seats are reserved for Gujarati speaking people. तो अभी जो CET सेल का सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, ये जो 51% सीट्स है ना, इसमें से तुमको सीट देने का ट्राई करेगा बेस्ड ऑन योर स्टेट मेरिट नंबर। ये जो है ना, ये जो तुमको दिख रहा है ना, ओके, स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो इस स्टूडेंट का है 10,989। ऑलराइट, ओके, सो बेस्ड ऑन दैट स्टेट जनरल मेरिट नंबर तुमको वो सीट देने का ट्राई करेगा। सो लेट मी जस्ट राइट ओवर द स्टेट मेरिट नंबर। सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ये जो 51% सीट्स है, समझो इसमें एक ही सीट बचा है। ओके, एंड लेट्स से देयर आर 2 गुजराती स्पीकिंग स्टूडेंट्स। ओके, एक का नाम है XYZ, एक का नाम है ABC। सो समझो इसका मेरिट नंबर है 10,889। ऑलराइट, और इसका मेरिट नंबर है 10,888। नाउ बोथ ऑफ देम आर गुजराती, both of them have applied for the same seat in the DJ Sanghvi College and समझो एक ही सीट बचा है। so ये जो है ये उन दोनों का स्टेट मेरिट नंबर है। ओके, so let's say there's only one seat left, okay, in this DJ Sanghvi College, let's say for computer engineering, okay, and both of them ABC and XYZ have applied for the same seat. तो अब इन दिस केस अगर एक ही सीट बचा है, ओके, तो वो एक सीट ये XYZ को मिल जाएगा जिसका स्टेट मेरिट रैंक है 10,888। सो एक बात क्लियर हो गई कि माइनॉरिटी कोटा का जो एडमिशन होता है वो स्टेट मेरिट नंबर के बेसिस पे होता है। ऑलराइट, सो दैट इज क्लियर। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट हु इज मराठी, हुज मदर टंग इज मराठी। उसने भी समझो डीजे संघवी कॉलेज में अप्लाई किया है, तो उसको जो सीट मिलेगी वो मिलेगी आउट ऑफ द रिमेनिंग सीट्स। रिमेनिंग का मतलब देखो, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है उसपे से माइनॉरिटी की सीट्स निकाल दो, ऑल इंडिया सीट्स निकाल दो, इंस्टीट्यूट की सीट्स निकाल दो, तो दीज आर द रिमेनिंग सीट्स। तो ये रिमेनिंग सीट्स में जो इसको एडमिशन मिलेगा वो भी होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट मेरिट नंबर। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, ये जो रिमेनिंग सीट्स है ना, इसमें रिजर्व कैटेगरी के लिए फिर कोटा नहीं होता है, SC ST OBC के लिए कोटा नहीं होता है। ओके, नाउ इन एवरी कॉलेज देयर आर सम सीट्स रिजर्व्ड फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स। ओके, यानी जिसने जेईई में दिया है। ओके, तो अभी ये जो ऑल इंडिया सीट्स है उसका जो ऑब्वियसली उसका जो सीट एलोकेशन होगा वो ऑब्वियसली होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया मेरिट नंबर।
ऑल इंडिया मेरिट नंबर. सो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस. ओके, अभी जब तुम नाउ तुम्हारे माइंड में किसी किसी के माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर मैंने तो जेई मेन भी दिया है, ओके, एंड आई ऑल्सो बिलोंग टू गुजराती माइनॉरिटी कोटा, तो मुझको जो सीट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो मैं एक सिंपल बात तुमको इधर बोलूंगा, इस बात का टेंशन तुमको लेने की जरूरत नहीं है. तुम जब अप्लाई करते हो तुम सब डिटेल्स डाल दो, उसके बाद जो सीईटी सेल का सॉफ्टवेयर है, इट इज एन ऑसम सॉफ्टवेयर, वेरी फेयर, ओके, वेरी एफिशिएंट एंड वन ऑफ द बेस्ट एडमिशन सॉफ्टवेयर्स व्हिच आई हैव सीन इन एंटायर इंडिया. तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इट विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट सीट, ओके, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर स्कोर्स आर. तो अगर समझो फॉर एग्जांपल तुमने ट्राई किया है, फॉर एग्जांपल तुमको चाहिए डीजे संघवी कंप्यूटर्स, ओके, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी कोशिश करेगा तुमको डीजे संघवी कंप्यूटर्स देने का. पहले वो ट्राई करेगा कि तुमको माइनॉरिटी कोटा में मिल रहा है क्या. बाय द वे माइनॉरिटी कोटा में हमेशा सीटी के बेसिस पे मिलता है, ओके. अगर तुमको माइनॉरिटी कोटा में नहीं मिल रहा है तो वो ट्राई करेगा तुमको ऑल इंडिया कोटा में मिल रहा है क्या, ऐसे. So basically that work will be done by CET software. You don't need to bother about it. Okay. Now let's talk about the Thadomal College. Thadomal College. Now let's say you are a Sindhi. Okay, you have applied to, let's say, computer engineering in Thadomal College, and Thadomal College में reservation है for Sindhi speaking people. So once again, इधर जो minority quota में admission होगा, once again it will be on the basis of state merit number. All right, now here comes a twist. Let's say you are a Maharashtrian, you are a Marathi speaking student, okay, here also same example tha, you have applied to TSEC. अब TSEC में obviously मराठी स्पीकिंग पीपल के लिए रिजर्वेशन नहीं है, ओके. तो इधर जब एक मराठी स्पीकिंग स्टूडेंट को सीट अलोकेट होगी, इट विल बी फ्रॉम द रिमेनिंग सीट्स. रिमेनिंग सीट्स का मतलब मालूम है ना, कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स माइनस दिस 51% सीट्स माइनस इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स माइनस ऑल इंडिया सीट्स. अभी होगा क्या, इधर भी तुमको वो रिमेनिंग सीट्स में से सीट अलॉट होगी. बट द ट्विस्ट इज कि इधर जब तुमको सीट अलॉट होगी ना, it will be on the basis of the university merit number. Here it will be on the basis of the university merit number. और वो जो तुमको सीट अलॉट होगी ना, it will be from the subcategory of HU. So I hope तुमको याद होगा, मैंने तुमको ये वाले पेज पे, ये प्रीवियस पेज पे बताया था कि TSEC जैसे कॉलेज में क्या होगा, there will be some seats which will be for HU students, home university students, and some few seats for OHU students, out of home university students. तो तुमको जो सीट अलोकेट होगी, ओके, ये स्टूडेंट को जो सीट अलोकेट होगी वो ये HU कैटेगरी में अलोकेट होगी based on his university merit number, not state merit number. ठीक है. उसी तरह से let's take example of a female, that means a lady, okay, मैं plural लिखता हूँ, ladies, okay, and let's say this female belongs to the OBC category, all right. अभी let's say in some particular college there are 3 seats reserved for OBC students. I hope तुमको याद होगा कि हर एक कैटेगरी में लेडीज के लिए 30% रिजर्वेशन होता है. तो ये 3 में से 1 सीट, ये वाली जो 1 सीट होगी, दिस विल बी रिजर्व्ड फॉर फीमेल स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द ओबीसी कैटेगरी, ओके. सो बेसिकली इन अवर एग्जांपल, कोई तो एक कॉलेज है, उसमें कोई तो एक कोर्स है, और उस कोर्स में लेट्स से सिर्फ एक ही सीट बचा है फॉर लेडी ओबीसी कैंडिडेट, ओके. सो इन दैट सिचुएशन तुम सोचो कौन सा इधर मेरिट नंबर यूज होगा. तो इधर वो वाला मेरिट नंबर होगा जो लेडी ओबीसी में आता है, ओके. सो आई होप यू रिमेंबर देयर इज अ मेरिट नंबर, लेडीज ओबीसी मेरिट नंबर. तो वो वाला मेरिट नंबर बेसिकली इधर यूज होगा, ओके. So I hope now these concepts are pretty clear to you कि कौन सा मेरिट नंबर कहाँ यूज होगा.
एज फार एज TFWS इज कंसर्न, TFWS में कुछ भी सब कैटेगरी नहीं होता है, पूरे स्टेट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ओके, कुछ भी वो होने दो, कोई भी वो होने दो, वो लोग एक ही कैटेगरी में आएंगे, TFS कैटेगरी, बेसिकली उसके अंदर सब कैटेगरीज नहीं होता है, ओके, और पूरे स्टेट के लिए एक ही होता है। Now there's something very important, and the next 5 minutes could be confusing if you don't listen to me carefully, okay? अब जब हम अपना सेमिनार्स लेते हैं, ओके, जब हम अपना सेमिनार्स लेते हैं, wait just a minute, let me type over here something like VJTI, okay, ठीक है. So VJTI is basically this Veer Mata Jijabai college, everybody knows, okay, it's in Matunga, the dream college of most of the students. अभी ये VJTI का सिविल इंजीनियरिंग का, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, ये जो है ना, ये VJTI का सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ है लास्ट ईयर का, ठीक है. सो बेसिकली लेट मी जस्ट जूम दिस अ लिटिल. सो इधर जो तुमको G दिख रहा है, G का मतलब होता है जनरल, ओके, एंड जनरल का मतलब होता है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, ओके, बॉयज और गर्ल्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है. एंड ये जो लास्ट वाला S है ना, लास्ट वाला S, इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, इसको तुम इग्नोर कर दो, ठीक है. तो G ओपन का मतलब क्या होता है? G ओपन का मतलब होता है बॉयज और गर्ल्स फ्रॉम द ओपन कैटेगरी. GSC का मतलब क्या होता है? बॉयज और गर्ल्स फ्रॉम द SC कैटेगरी. उसी तरह से आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो अभी ये सेम चीज देखो, L ओपन का क्या मतलब होगा? तो L ओपन का मतलब होगा ओनली गर्ल्स फ्रॉम द ओपन कैटेगरी, ओके, एंड दैट वे इसके आगे भी तुमको ऐसा सब दिखाई देगा. ऑलराइट, ठीक है. अभी there is something very important, and as I told you this could be confusing, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनना. इफ यू रिमेम्बर, हम जब सेमिनार्स लेते हैं तो हम सेमिनार्स में बोलते हैं कि आप कभी भी ना ये कट ऑफ मार्क के झंझट में चक्कर में मत पड़ो, ओके. इनफैक्ट हम तो ये एडवाइस करते हैं लास्ट ईयर का कट ऑफ देखो ही मत, ओके. एंड व्हाइल फिलिंग द ऑप्शन फॉर्म जस्ट यूज द 3D रूल, ओके. सो आई होप यू नो व्हाट इज द 3D रूल. उसके बारे में हम बहुत बार बोलते हैं, सेमिनार्स में भी बोला था, ओके. अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि आप ये कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो? तो इसका एक रीजन, ओके, बहुत सारे रीजंस हैं. इसका एक रीजन अब मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, ओके. नाउ let's take this particular example, okay. LOBC, ओके. बस अभी कुछ 2-3 मिनट पहले, ओके, मैंने आपको एक LOBC का एग्जांपल दिया था और मैंने आपको बताया था कि अगर LOBC का मतलब क्या होता है? L मतलब लेडीज यानी गर्ल्स, ओके, एंड OBC इज द कैटेगरी, ऑलराइट. अब इधर आपको एक रैंक दिख रहा है 8249, ओके. अब ये रैंक देख के किसी को क्या लगेगा? प्लीज बी अटेंटिव. ये रैंक देख के किसी को क्या लगेगा? किसी को लगेगा कि ये जो 8249 है, it could be the ladies OBC rank, it could be the ladies OBC merit rank, ऐसा किसी को लगेगा. बट इन रियलिटी ये जो 8249 है ना, वो लेडीज ओबीसी रैंक नहीं है, ये स्टेट जनरल रैंक है. फिर भी अगर नहीं समझा तो लुक ओवर हियर, फिर से मैं बोलता हूं, ये जो तुमको 8249 दिखता है ना, 8249, वो ये वाला रैंक नहीं है. जस्ट अ मिनट, वो ये वाला रैंक नहीं है. लेडी स्टेट ओबीसी ये वाला रैंक नहीं है, नहीं, ओके. वो ये वाला रैंक है. अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, ओके, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. होता क्या है, लेडीज ओबीसी कैटेगरी में जब एडमिशन होता है, आई रिपीट, लेडीज ओबीसी कैटेगरी में जब एडमिशन होता है, तो एडमिशन के लिए ये रैंक कंसिडर होगा, ये वाला, ओके.
बट जब कट ऑफ दिखाया जाता है, तो ये नहीं, ये दिखाया जाएगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द कैच ओवर हियर, कि जब लेडीज ओबीसी कैटेगरी में या कोई भी कैटेगरी में, मैंने एक लेडीज ओबीसी का एग्जांपल लिया, बट किसी भी कैटेगरी के अंदर जब ये एडमिशन होगा, तभी तभी होगा क्या, दिखाया जाएगा, एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैटेगरी रैंक। आई रिपीट, किसी भी कैटेगरी में जब एडमिशन होगा तो एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैटेगरी रैंक। बट ये जो कट ऑफ्स है, ये कट ऑफ्स में जो तुमको रैंक दिखता है, ये वो कैटेगरी का रैंक नहीं होता है, ये वो स्टेट जनरल मेरिट नंबर होता है। So that is why very often the cutoffs themselves are misleading, and this is one more final reason of we always telling you कि cutoff के चक्कर में तुम मत पड़ो, 3D rule use करो and fill the options form. Anyway, so this was a general explanation of the merit rank. I hope you have understood this. Okay. Now let me give you an eye opener. अब ये जो 15-20 मिनट का वीडियो था, ओके, ये तुमको समझा या नहीं समझा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। In fact, the bad news over here is that you have lost the precious 20 minutes of your life watching this particular video. क्यों? क्योंकि ये वीडियो अगर तुम नहीं भी देखते ना, तो भी तुम्हारे एडमिशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, क्यों नहीं? क्योंकि the CET cell software already knows your ranking. ओके, तो तुम जब ऑप्शन फॉर्म भरोगे ना, तो वो जो काम करेगा वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली करेगा विदाउट योर इंटरवेंशन। तो तुमको अभी कुछ रैंक वैंक कुछ कहीं डालना नहीं है, ये खाली तुम्हारे नॉलेज के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो लोग नहीं समझते, जहां लोग गलती करते हैं, वो है सीक्वेंसिंग इन द ऑप्शंस लिस्ट, इन द ऑप्शंस फॉर्म। तुमको सिर्फ उसी एक चीज पे ध्यान देना है, एंड अगर तुमको वहां गलती नहीं करना है तो फॉलो द सिंपल 3D रूल, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है। ओके, एवरीथिंग एल्स डज नॉट मैटर। ओके, anyway, so this was a video on merit rank, and I hope you have already taken admission to our batches. Our regular batches are starting in the first week of November. Remember one thing, admission milna is not the real battle. The real battle starts after you get into engineering. Okay, so I hope you understood all this. Thank you very much. Take care. Good luck.